Okay, can you hear me? Yes, sir. The connection was interrupted, and we are again here. Yeah, sorry for the disruption. Um, Let me share with you the. Can you see the slides? Yes, Dr. Razwan, Tahir sir, we can see it. The literature reviews slide, right? Yes. Okay. It is basically an intellectual pursuit that a researcher or principal investigator has to do in order to understand what is already known on the topic. अभी तक कितनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, क्या क्या हमें पता है, एंड इट आल्सो हेल्प्स यू टू डेवलप योर ओन मेथोडोलॉजीज. जब आप दूसरों की रिसर्चेस पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि उन लोगों ने ये पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल कैसे कवर किया, कैसे उसको ओवरकम किया, और ये वाला काम उन्होंने कैसे किया. इससे आपको हेल्प मिलती है कि आप अपना प्रोसीजर बना सकें. It's a mandatory process. It's a required process. It serves as an important function to both the researcher and the reader. हम लिटरेचर रिव्यू को कैसे करें, सवाल ये है. लिटरेचर रिव्यू को सिस्टमैटिक किया जाता है. आप कीवर्ड्स यूज करते हैं, अपनी स्टडी से रिलेटेड पर्टिकुलर कीवर्ड्स यूज करते हैं, और उसके बाद उसको सर्च इंजन के अंदर डालते हैं. Since it's a limited session, we can't go into the detail of how literature review is done. I'm just telling you the very basics के किस तरीके से इसको किया जाता है. आप you use keywords. For example, I'm conducting a research on tuberculosis and smoking, or I'm conducting a research on thalassemia among children and cousin marriages. So all these are keywords, and I'm going to use advanced search option PubMed पे या Google Scholar पे to search articles related to these keywords. ठीक है? It serves important function to both the researcher and the reader. आप दोनों को हेल्प आउट करेगा, आपको भी हेल्प आउट करेगा, रीडर को भी हेल्प आउट करेगा. यहाँ रीडर कौन है, ये बात याद रखिएगा. रीडर वो एजेंसी है, वो कमिटी है जो आपके सिनॉप्सिस को अप्रूव करेगी फर्दर. It ensures that the duplication of the previous studies is prevented. Obviously, जब आप इतना in-depth analysis करेंगे लिटरेचर का, ऑलरेडी पब्लिश लिटरेचर का, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वाला सवाल ऑलरेडी उसका जवाब दिया जा चुका है या नहीं दिया जा चुका. सही है. ये चीज आपकी ये इसको we won't be reinventing the wheel. It allows the researcher to become familiar with the already known, what is already known, obviously, about the problem, and aware of the supporting and opposing point of views. It allows the researcher to become familiar with what is, past research provides useful information on previous tested hypotheses, operational definitions, data collection instruments, and research design pertinent to research problem. Methodology को develop करना is very important. How you're going to conduct or collect information on that particular objective, ये आपको पुरानी रिसर्चेस बताएंगी. पुरानी रिसर्च से पता चलेगा कि उन्होंने डाटा कैसे कंडक्ट किया था. ठीक है. Dr. Sunny, can you excuse me for a moment? Yes, Dr. Tahir. Just excuse me for a moment, okay? Please, sir, take time.
आवाज नहीं आ रही, आवाज में मसला है। Okay, sorry for the disturbance. Now, how to organize your literature review? Basically, a research synopsis is like a funnel. Okay, it starts with the broad introduction, and then it narrows down. So this part is the literature review. Narrow down हो रहा होता further. आप इंटरनेशनल रिव्यू स्टडीज के साथ डिस्कस करते हैं, उनकी फाइंडिंग्स डिस्कस करते हैं, देन यू डिस्कस रीजनल स्टडीज, देन यू डिस्कस लोकल लिटरेचर, लोकल स्टडीज, फाइंडिंग्स उनकी, और उसके बाद आप टुवर्ड्स द एंड, द बॉटम ऑफ द फनल, आप बताते हैं कि क्या चीज ऑलरेडी नोन है और क्या चीज अननोन है। ठीक है? Yes. और ये सब बताने के बाद कि क्या नोन है ऑलरेडी और क्या अननोन है, आप रैशनेल देंगे। व्हाट इज रैशनेल इन साइंटिफिक टर्म्स? व्हाट इज रैशनेल? कैन एनीवन टेल मी? Participants from other regions, can anyone tell me what is the rationale? Rational, according to the best of my knowledge, rational is a thing which is feasible and which could be accepted by human knowledge or human mind. Okay, anyone else? That's rational, actually. Rationale for the study is the justification of your study. Why you're doing this study? What makes this study so important to be done? अब आपने जब बता दिया कि क्या पता है और क्या नहीं पता लिटरेचर रिव्यू के बाद, तो ऑलरेडी आप बता सकते हैं कि ये चीज नहीं पता और यही मैं मालूम करने जा रहा हूं, एंड दिस इज द रैशनल ऑफ द स्टडी. ठीक है? Supporting evidence to describe the magnitude of the problem and impact of the solution is provided. Such evidence should be cited from the literature. Always cite reference, always cite the source of the study. Previous controversial findings आप बताते हैं इसके अंदर, recommendations for the study from other studies, and lack of related published research. So I would like to stop and ask you to share anyone. I think I've seen Dr. Rizwan, Dr. Noman here, and couple of others who have done a lot of research, mashallah. आपको लिटरेचर रिव्यू करते हुए कोई चीज ऐसी मिली है कि जिसके अंदर आप ढूंढना चाह रहे थे वो चीज, पर्टिकुलर चीज, और वो आपको पब्लिश लिटरेचर के अंदर नहीं मिल सकी, एंड देन यू अंडरस्टूड के यार ये तो अभी तक पता ही नहीं चला है, ये तो अभी तक मुझे मालूम ही नहीं है, या किसी को भी नहीं मालूम, या कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ है? हैज इट बीन द केस? Mudassar, if you are here, please share your experience also. Mudassar Bilal. Assalamualaikum, sir. Yes, sir. During our literature review for this thalassemia project, we had no previous research or studies specifically and reporting the prevalence and the total cases of thalassemia major within the Pakhan division. So that was a major gap. It was lack of study. We did find such So a gap. what I understood from your experience is that
You could not find the prevalence of thalassemia in Pakistan, the entire Pakistan, or In Makran division and in Balochistan. okay? But the thing is, Balochistan is not small province. It's a big province. It needs it needs a very big study to be conducted to find out the prevalence of thalassemia in Balochistan. And how, by the way, did you find out how prevalence of thalassemia is measured in such studies? So ये methodology का concept आ जाएगा. Methodology को sharpen कहते हैं ना, sharpen the saw. Sharpen करने के लिए आपको इससे हेल्प मिलेगी. आपको पता चला कि थैलेसीमिया की मेजरमेंट हुई कैसे थी, कि whether somebody is thalassemia or not? सिर्फ जाके हॉस्पिटल्स में चेक किया था या पूरी पॉपुलेशन के अंदर जाके चेक किया था? मुदस्सिर? Sir, there was an estimation कि इतने पेशेंट्स होंगे. एक स्टडी ने सिर्फ मेंशन किया था कि देयर इज एन एस्टिमेशन कि इतने केसेस हो सकते हैं. एग्जैक्ट नहीं था उनका. And that study was actually assessing, वो assess कर रहे थे कि ट्रांसफ्यूजन जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स में होती है उनमें हेपेटाइटिस सी एंड बी वायरसेस के इन्फेक्शन कितने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वो उसको चेक कर रहे थे. तो इनडायरेक्टली उन्होंने थैलेसीमिया के तमाम पेशेंट का एस्टिमेशन किया था. एग्जैक्ट थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स में कोई खास लिटरेचर नहीं मिला हमें. Sir, actually, Yes, please. sir, they were not checking prevalence of the thalassemia. They just checked the already registered patients in the thalassemia centers of the PMC and civil hospitals. Prevalence is not yet exactly known. Yes, right. You're right. अच्छा, थैलेसीमिया के साथ एक हमें थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जाता है कि थैलेसीमिया मेजर एटलीस्ट कैन नॉट गो अननोटिस. ये किसी ऐसी डायबिटीज की तरह नहीं है कि अननोटिस चली जाए काफी सालों तक. एक तो ये अर्ली ऑनसेट होती है, चाइल्डहुड डिजीज है, और अल्टीमेटली ये सामने आ जाती है, जिसकी वजह से थैलेसीमिया सेंटर्स एक अच्छा आपका डाटा कलेक्शन पॉइंट है जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है. बाकी मुदस्सिर, आपने जो बात की है एस्टिमेशन की, वो दैट वाज समथिंग एल्स. दैट स्टडी वाज ऑन द TTIs, the transfusion transmitted infections. उसमें तो एस्टिमेशन ही होगी, उसमें आपको एग्जैक्ट प्रेवलेंस मिलेगी नहीं. प्रेवलेंस के ऊपर अलग से स्टडीज होंगी या फ्रीक्वेंसी के ऊपर अलग से स्टडीज होंगी, उसमें आपको मिल जाएगी ये चीज. डॉक्टर रिजवान, आप कुछ कह रहे थे? तो उसमें हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जो कि रिड्यूस कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल ब्लड के अंदर. तो कर सकता था कि अगर ब्लड डोनेट किया जाए एवरी मंथ, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम किया जा सकता है. क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में VLDL जो है वो बॉडी से निकालना बड़ा मुश्किल अगर हो जाए हैवी अमाउंट में मौजूद हो तो निकालना बड़ा मुश्किल है. तो एक स्टडी की, उसमें हम ये सर्च करना चाह रहे थे अगर वो ब्लड डोनेट करें के ऊपर या उनके लेवल के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा. तो इसके ऊपर कोई रिसर्च स्टडी मिली नहीं हमें. Correct. This is a research idea. This is a very good research idea, but I think physiology people will. हम तो रिसर्च कर रहे हैं ना, तो हमें तो चाहिए था कि ऑलरेडी लिटरेचर सर्च में कुछ चीज ऐसी मिल जाए जो इससे पहले कोई काम नहीं हुआ होता इसके ऊपर. काम यूनिक हो गया नहीं कर सकते. Okay, I think physiology faculty will be able to handle this question even better.
डॉक्टर नोमान है, डॉक्टर प्रोफेसर लाखू बैठे हुए? I don't think. Okay, this is another research idea which can be dealt with, which can be looked into. So moving forward, thank you, Dr. Rizwan. Thank you, everybody. ये सीक्वेंस में रैशनल के बाद आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम. दिस इज सिंपली वन declarative sentence that summarizes your previous section by clearly stating what the problem is. So what are the effects of overhanging posterior? For example, the dentistry की थोड़ी सी example है, या मैं आपसे ये पूछूं, what is statement of problem is, what is the prevalence of thalassemia in Balochistan or thalassemia major in Balochistan? This will be the statement of problem. ठीक है? हाइपोथेसिस उस वक्त होगा जब आप एनालिटिकल स्टडी कर रहे होंगे. अगर आप सिंपली प्रेवलेंस मालूम करने जा रहे हैं तो देयर इज नो नीड फॉर एनी हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस वो होता है कि जब आप कोई टेस्ट कर रहे होते हैं कि कोई ये चीज ज्यादा है या ये कम है. जैसे कि डॉक्टर रिजवान ने भी एग्जांपल दी कि क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होंगे डोनेट करने से. डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात सही समझी है ना? डॉक्टर रिजवान, मैंने आपकी बात सही समझी है ना? आप सही कह रहे हैं जी. ब्लड डोनेट करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होते हैं या नहीं होते, ये एक हाइपोथेसिस है. अब ये कैसे टेस्ट होगा? ये रिसर्च करने के बाद ही टेस्ट होगा ना. आपने डोनेशन से पहले कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर लिया और डोनेशन के बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर लिया फॉर मल्टीपल टाइम्स. ये हाइपोथेसिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम के बाद लिखा जाता है. ठीक है? अब आपका आता है इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ पे मेंशन नहीं है ऑब्जेक्टिव्स. मैं आपको जब टेम्पलेट दिखाऊंगा तो उसमें लिखा हुआ होगा. अगर थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, सिंपली ऑब्जेक्टिव ये होगा टू आइडेंटिफाई और टू फाइंड आउट और टू डिटरमिन द प्रेवलेंस ऑफ थैलेसीमिया मेजर इन बलूचिस्तान. ठीक है? एंड देन द ऑपरेशन डेफिनेशंस. ऑपरेशन डेफिनेशंस क्या होंगी? ऑपरेशन डेफिनेशंस डिफाइन करेंगी कि प्रेवलेंस आप किसको कह रहे हैं, थैलेसीमिया मेजर आप किसको कह रहे हैं. यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप आ जाता है मेथडोलॉजी के साथ कि थैलेसीमिया मेजर किसको कह रहे हैं और कैसे डिटरमिन होगा. ब्रीफली, या तो आप ऑलरेडी डायग्नोज पेशेंट्स को थैलेसीमिया मेजर लेंगे या न्यूली डायग्नोसिस करेंगे. ठीक है? ये ऑपरेशन डेफिनेशंस का पार्ट है. Limitations is not necessary, so it doesn't have to be the part of it. Now comes to chapter 2, materials and methods or subjects of methods. When it is lab related work, you write materials and methods, and when it is patient related work, you write subjects and methods. This section delineates procedures for testing the hypothesis, explains how these procedures can produce desired results, and describe all materials and equipments to be utilized. Sample description के अंदर following are the items for this regard. Describing the characteristics of the population. अब बलूचिस्तान के अंदर आप बता रहे हैं कि थैलेसीमिया की कहीं प्रेवलेंस मौजूद नहीं है, थैलेसीमिया मेजर की. वो पूरी पॉपुलेशन की डिस्क्रिप्शन आपको ब्रीफली बतानी है. ठीक है? Describing the characteristics of the population, गिविंग रैशनल फॉर सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन. आपने यही पर्टिकुलर पॉपुलेशन क्यों ली, आपने बलूचिस्तान ही क्यों लिया थैलेसीमिया मेजर की प्रेवलेंस चेक करने के लिए? ऑब्वियसली इट इज लेस अंडरस्टूड एरिया, वी हैव लेस अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम देयर, सो दिस इज व्हाई जो है वी हैव सेलेक्टेड दिस पॉपुलेशन. डिस्क्राइबिंग एंड जस्टिफाइंग the sampling procedure to be used for subject selection. अब सैम्पलिंग टेक्निक यहाँ पे आ जाती है कि सैम्पलिंग की कैसे जाती है. सैम्पलिंग जो है बेसिकली उसके कई तरीके हैं, रैंडम सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग. वो थोड़ा सा डिटेल में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में, किसी डॉक्यूमेंट के साथ शेयर कर दूंगा.
लेकिन अभी यहाँ पे इसको डिस्कस करने का शायद टाइम ना मिले हमें। इंडिकेटिंग द पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ऑब्वियसली आपके जो सैंपल साइज प्रोसीजर है सारा वो आ जाएगा। डिलिमिटिंग द सैंपल, आप कैसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को यूज करेंगे इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर। क्या होता है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये हम डिटेल में बात करते हैं अभी। एंड रिपोर्टिंग एक्सचेंजेस वेरिएबल्स, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है। लाइफ इज नॉट सिंपल, लाइफ आपके उन्हीं दो वेरिएबल्स के ऊपर काम नहीं कर रही होती, जिंदगी में और बहुत सारे चीजें और बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं वो आ रहे होते हैं, टेक पार्ट कर रहे होते हैं लाइफ के अंदर, किसी भी पेशेंट के या किसी भी पर्सन के। सो उसकी वजह से आपको ये सारी फैक्टर्स को फाउंडर्स के तौर पे, कन्फाउंडर्स के तौर पे, और ये थर्ड वेरिएबल्स के तौर पे, कोवेरिएट्स के तौर पे मेंशन करना पड़ेगा। स्टडी डिजाइन कौन सी लेंगे आप? वी हैव, आई थिंक यू हैव लर्नड अबाउट स्टडी डिजाइंस, के स्टडी डिजाइन होती कितनी तरह की है। क्रॉस सेक्शन स्टडी डिजाइन होती हैं प्रेवलेंस मालूम करने के लिए, एसोसिएशंस मालूम करने के लिए केस कंट्रोल होती है, और कॉजेशन मालूम करने के लिए कोहॉर्ट होती है। सो जो भी आप स्टडी डिजाइन यूज कर रहे हैं उसको आप बता दें कि इफेक्टिव स्टडी डिजाइन कौन सा है, सिलेक्शन आपने इसकी क्यों की, एंड हाउ विल इट टेस्ट योर हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट आपने कोई कंट्रोल ग्रुप लिया है या नहीं लिया, अगर आप कोई कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, ये सारी चीजें स्टडी डिजाइन के अंदर मेंशन्ड होंगी। नाउ देयर इज अ हेडिंग कॉल्ड मेथड्स। आपने कभी शान का पैकेट मसाला देखा है? कौरमा मसाला, बिरयानी मसाला, उसके पीछे रेसिपी लिखी हुई होती है ना, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, और उसके बाद तरकीब लिखी हुई होती है। तरकीब में एक एक चीज लिखी हुई होती है, अब प्याज काटें, अब ये काटें, अब वो काटें, उसके बाद अब आप जो है उसको भूने, और ये सारा प्रोसीजर इन सीक्वेंस होता है। मेथड्स एग्जैक्टली रेसिपी होते हैं आपकी स्टडी के। आपने किस तरीके से आगे काम करना है from the moment the subject or the potential participants comes into your hospital or comes into your OPD or comes into your setting, research setting, वहां से आपने लेना है, और उसके बाद आपने उसको फर्दर मूव करना है, और आपने बताना है कि मैं डाटा कलेक्शन कैसे करूंगा। इज इट क्लियर? Yes, No, that's it's not clear. With the tone of yes, I can see that it's not clear. Any question? no sir, it was a beautiful example. ये शान मसाला याद रहेगा। अच्छा ठीक है सर, thank you so much. Data collection is simply how will you collect the data. अगर क्वेश्चनेयर बेस्ड स्टडी है, तो डेफिनेटली क्वेश्चनेयर आपने खुद बनाया है या कोई ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर लिया है। दिस इज साइंस, सही है? This is science. This is not, I'm extremely sorry to say what we have done to religion. This is not religion. Religion के साथ जो हमने मजाक किया हुआ है कि जिसकी जो मर्जी है वो अपना बोलता फिरे, साइंस के अंदर ऐसा नहीं होता। साइंस के अंदर आपको सब्जेक्टिवली बात नहीं करनी होती, ऑब्जेक्टिवली बात करनी होती है। ठीक है, आपने बताना होता है कि ये क्वेश्चन है मैंने कहाँ से लिया है, क्या ये पायलटेड है, क्या ये प्री टेस्टेड है या नहीं है, और अगर मैंने इसको खुद डिजाइन किया है तो क्या मैंने इसको पायलट किया है और प्री टेस्ट किया है या नहीं किया। ठीक है, अब ये सारे स्टेप्स हैं डाटा कलेक्शन के, ये आपको मैं बता चुका हूं। अब आप प्लान बताएंगे कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ट्रीटमेंट डाटा की कैसे करेंगे आप। इसमें आप बता देंगे कि आपने टेस्ट कौन सा रन करने हैं, आपने फ्रीक्वेंसीज रन करनी है, आपने मीन मोड मीडियन बताना है, आपने टी टेस्ट रन करना है, आपने एनोवा रन करना है, क्या करना है।
ओके, सो आई एम गोइंग टू, एक्चुअली मैं स्किप इसलिए कर रहा हूं कि मैं अभी एग्जांपल दूंगा एक्चुअल टेम्पलेट की और एक्चुअल ग्रांट एप्लीकेशन की। टाइम स्केड्यूल कैसे बताया जाता है? टाइम स्केड्यूल को बेसिकली आप बताने का तरीका ये होता है कि हम यूजुअली गैंट चार्ट यूज करते हैं। गैंट चार्ट क्या होता है? इट इज लाइक दिस। नाउ कैन यू सी दिस ग्राफिक्स? कैन यू सी दिस टेबल? Yes, sir. We can तो see it. सेक्शन सीक्वेंस 1 में साइनॉप्सिस, राइटिंग एंड अप्रूवल, और फिर ये टाइम बताया हुआ है कि कितना टाइम लगाएगा ये। इट विल टेक ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 मंथ, ठीक है, साइनॉप्सिस, राइटिंग एंड अप्रूवल। नंबर 2 पे डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के अंदर आपको 3 मंथ्स लग जाएंगे, ये आपने मार्क कर दिया। डाटा प्रोसेसिंग के अंदर आपको 2 मंथ्स लग जाएंगे। अच्छा, डाटा कलेक्शन के साथ साथ डाटा प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। कैन यू सी दी ओवरलैप? एंड देन डाटा प्रोसेसिंग के साथ थीसिस रिपोर्ट राइटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि थीसिस रिपोर्ट राइटिंग तो आपकी डाटा प्रोसेसिंग के साथ शुरू हो रही है ना, रिजल्ट्स आते जा रहे हैं साथ साथ। और फिर आपने इंट्रोडक्शन भी लिखना है, लिटरेचर रिव्यू भी लिखना है, मेथोडोलॉजी भी लिखनी है, तो वो सारी चीजें साथ साथ शुरू हो जाएंगी। सो इन 6 months पीरियड टोटल द स्टडी विल बी डन। फिर बजटिंग, और बजट की जो जस्टिफिकेशन है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है अपने साइनॉप्सिस के अंदर। नाउ I'll show you the template. Okay, can everybody see this? The file, Word file? Yes, sir. We can. Research synopsis. Yes. So I'm going to share this document with you, so don't worry. I'm going to send this Word file to you, to Dr. Saneer, and he will provide all of you with the copy. This is the front page. Front page के ऊपर आपका टाइटल आ जाएगा, the title of your research, ठीक है, जो भी टाइटल आपने सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे आपकी जो जहाँ जिस कमेटी के अंदर आप, ये बेसिकली मैंने बनाया था अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए, तो उसी को मैं एज एन एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। यू कैन चेंज इट फॉर योर ओन रिक्वायरमेंट्स। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप डालना चाहें तो डाल लें अपने सुपरवाइजर के साथ। देन कम्स टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये देखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं फोकस करना चाह रहा था थोड़ा सा। चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन। एज यू कैन सी, चैप्टर नंबर 1 में पहली चीज जो आ रही है वो बैकग्राउंड आ रही है। नाउ लुक, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 paragraphs, not a very lengthy discussion, just 3 to 4 paragraphs discussing overall introduction of the topic, magnitude of the problem being discussed, and what is already known about the topic. So पहले पैराग्राफ के अंदर क्या आ जाएगा? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। दूसरे के अंदर क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, के थैलेसीमिया क्या कितना बड़ा इशू है बलूचिस्तान के अंदर। थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट सेंटर्स नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ओनली रिसोर्स दैट वी हैव, और वो भी बहुत सेफ ब्लड इज रेयर। एंड देन थर्ड इज what is already known about the topic, ठीक है, क्या क्या अभी तक पता चल चुका है हमें इस टॉपिक के बारे में, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हाईलाइट हो चुकी हैं। लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप आ जाएंगे
एंड देन अगेन 3 पैराग्राफ्स मैंने आपको बताया था कि या तो इंटरनेशनल स्टडीज से शुरू करें, हम इंटरनेशनल, रीजनल, लोकल इस पे आ जाएं, या फिर आप इस तरह से बताना शुरू कर दें कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको पता है कि हमें ये चीजें पाकिस्तान के अंदर ये इश्यूज मालूम है हमें, लेकिन हमें मालूम नहीं है तो बलूचिस्तान के अंदर मालूम नहीं है, एंड यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स ये हैं। जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगेन द फनल की एग्जांपल मैं दूंगा, फनल में जब नैरो डाउन कर लेते हैं आप प्रॉब्लम को, तो उसके बाद रैशनल मिल जाता है, आपको वजह मिल जाती है स्टडी करने की। ठीक है, स्टडी करने की वजह मिल गई आपको, तो फिर आप अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बड़े आराम से बता सकते हैं। टू फाइंड आउट द प्रेवलेंस ऑफ थैलेसीमिया मेजर in Balochistan. Objective is simply a statement to find out or to determine the prevalence of thalassemia in the province of Balochistan. इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है, to study the prevalence of tuberculosis in rural parts of Sindh province. ठीक है, हाइपोथेसिस की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, अगर हाइपोथेसिस की जरूरत है तो दें, नहीं तो ना दें। ऑपरेशनल डेफिनेशन के अंदर आप एक्चुअली बताएंगे कि क्या चीज किस तरीके से मेजर होगी। अगर थैलेसीमिया की बात हो रही है तो थैलेसीमिया को किसी को आप थैलेसीमिया कहेंगे कैसे? अ पेशेंट registered at a thalassemia center for the sake of treatment, या जिसका हीमोग्लोबिन इतना रहता है, will be considered as a thalassemia. ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन की, टोटल हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ब्लड सेल्स expressed in grams per 100 ml or grams per deciliter, this will be measured using, अब आपने यहाँ पे इक्विपमेंट भी बता दिया कि किस इक्विपमेंट के जरिए से इसको मेजर किया जाएगा। सही है, ये चीजें ऑपरेशनल डेफिनेशन का पार्ट होंगी। ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के अंदर जो जो टर्म्स यूज हुई हैं, प्रेवलेंस, ट्यूबरक्लोसिस, रूरल पार्ट्स ऑफ सिंध किसको कहेंगे आप, ये तमाम चीजें ऑपरेशनल डेफिनेशन में डिफाइन होंगी। मैं रिपीट कर देता हूं, प्रेवलेंस कैसे मेजर होगी, ट्यूबरक्लोसिस किसको कहेंगे आप, और रूरल पार्ट्स ऑफ सिंध प्रोविंस किसको मानेंगे आप, ये सारी चीजें ऑपरेशनल डेफिनेशन के अंदर मेंशन होंगी। मेथडोलॉजी का चैप्टर आ जाता है सेकंड चैप्टर, स्टडी डिजाइन। सिंपली आप यहाँ पे बता देंगे कि दिस विल बी अ क्रॉस सेक्शन स्टडी डिजाइन, दिस विल बी अ केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन, दिस विल बी अ कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन, दिस विल बी अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल और व्हाटएवर। स्टडी सेटिंग में आप बता देंगे कि आप ये स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी है तो आप बता देंगे यूनियन काउंसिल कौन सी है, तहसील कौन सी है। इसके अलावा अगर आप किसी हॉस्पिटल में कर रहे हैं, मल्टीपल हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, तो मल्टीपल हॉस्पिटल्स के नाम आ जाएंगे। ठीक है, स्टडी ड्यूरेशन याद करें, मैंने आपको गैंट चार्ट दिखाया था, गैंट चार्ट के अंदर आपको टोटल 6 मंथ्स की स्टडी मिल रही थी, वो यहाँ पे आप लिख देंगे दिस स्टडी विल बी ऑफ 6 मंथ्स ड्यूरेशन। स्टडी पॉपुलेशन क्या है वो आप बता देंगे, ऑल द थैलेसेमिक्स इन बलूचिस्तान विल बी द स्टडी पॉपुलेशन। सैंपल साइज कैलकुलेशन की पूरी कैलकुलेशन आएगी। इट्स अनदर सेशन, आई कैन नॉट show or teach sample size calculation in this session. It's a time consuming thing to teach. सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर आप कौन सी सैम्पलिंग लेंगे, कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग लेंगे, आप रैंडम सैम्पलिंग लेंगे, आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग लेंगे, व्हाटएवर, जस्ट मेंशन इट। इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, नाउ ये वो चीजें जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है।
I need example from any of the participants. What will be an inclusion criteria? Mudassir, what will be the inclusion criteria in your study? Sir, my team was trying to assess planning to assess the psychological burden or the psychological morbidities in immediate care workers, caregivers of thalassemia major patient. So, in our mind, the inclusion criteria was the population or the immediate primary caregivers, either father, mother, siblings, relatives, or care of a thalassemia major patient in the one center, uh, thalassemia care center. The first criteria was the primary one. The second one is in the only in the first and foremost the cage thalassemia care center. They must be the caretaking at least 6 महीने तक वो caretaking करें. And apart from that, I'm forgetting one more point. मैंने rough sketch में लिखा था लेकिन अभी मेरे ठीक है. दिमाग में नहीं आ रहा. Thank तीन you. Thank you, Mudassir. Okay, Mudassir, can you tell me के इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर प्राइमरी केयर गिवर्स आ गए. प्राइमरी केयर गिवर्स आ गए जो थैलेसेमिक्स को की केयर कर रहे हैं और उनके अंदर साइकोलॉजिकल वेलबींग देखना चाह रहे हैं आप, एज आई अंडरस्टूड इट. Yes, sir, depression and anxiety, to be more specific. ओके. सो अभी किसी केयर गिवर के पेशेंट को डायग्नोज हुए 2 दिन हुए. डू यू एक्सपेक्ट, चले ठीक है, इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर तो वो आ रहा है ना, केयर गिवर है, मानते हैं केयर गिवर है, आप मानते हैं कि उसके पेशेंट को थैलेसीमिया है, आप मानते हैं कि ही और शी इज एट रिस्क. अब मुझे बता दें इंक्लूजन क्राइटेरिया के ऊपर तो पूरा बैठ गया है, लेकिन क्या इसको इंक्लूड होना चाहिए स्टडी के अंदर? उसके पेशेंट को सिर्फ 2 दिन पहले डायग्नोसिस हुई है थैलेसीमिया की. We still have to discuss this